Good evening, dear all. Again, a very warm welcome by Rotary Club of Dombivli West, pleasantly announcing the career guidance. Am I audible? Yeah, very much, very much. Okay. You're audible. So, career guidance session by CA Vishwanath Iyer. I could call him as Vishu sir only because Vishwanathan Iyer बहुत बड़ा लगता है. So, he is fondly called as Vishu sir, and we are really delighted to have 16 Rotary clubs of Dombivli as well as Titwala and Thane who has wholeheartedly joined and supported into this beautiful session. It's going to be very informative and very interactive. So, on behalf of our club president, Rotary Club of Dombivli West President, Rotarian Dilip Bhagat, or Honorable Secretary Shailesh Gupte, and Team RCW, a very warm welcome to all the Josh presidents, the participating clubs, and the attendees. I'm really honored to have this welcoming part given to me, and it's a real honor. Like Vishu is something very near to me as a friend. On behalf of all the Rotary clubs, I take this opportunity once again to welcome you all for this wonderful session, wherein we will be trying to analyze the various career opportunities that commerce gives you. मेरे दोस्तों, my entire presentation would be a mix of languages. It would be English, Hindi, and Marathi as and when needed, and the focus would be commerce. But before I proceed, anything to say about commerce? First and foremost, I would like to congratulate each and every SSC student who has joined here. Just before we start, I would like to ask the audience how many of you have actually cleared your SSC in 2020. Please type a me in the chat box. Yeah, superb, wonderful. So we are having quite a number of students जिनको एक्चुअल में इस सेशन फायदेमंद देगा और उनको हेल्प करेगा कि कॉमर्स क्या है समझने के लिए. मैंने नीचे एक छोटा सा लाइन लिखा है, यू हैव वोन योर ओन बैटल. याद रखना, हर एक की परिस्थिति अलग अलग होती है, हर एक का परसेंटेज यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जमा हुए हैं उनके अलग अलग होंगे. कोई 60 में रहेगा, कोई 70 में, कोई 80 में और कोई 90 में. लेकिन एक बात सबके साथ कॉमन है कि हर एक की लड़ाई, हर एक की तैयारी, हर एक की सोच ये अलग अलग होती है. एंड स्पेशली स्टूडेंट्स जिन लोगों को 78% मिला है या 69% मिला है या वो 89% मिला है, आज एक बात पक्का है, उन लोग अपना उस एक एग्जाम के बारे में जरूर सोचते रहेंगे जो कैंसिल हो गया, दैट वाज ज्योग्राफी एग्जाम, कि काश वो पेपर होता और बेस्ट ऑफ 5 में मेरा वो परसेंटेज 78 का 80 हो गया होता, 80 का 90 हो गया रहता. Semi, my dear friends, are you missing your geography examination? Yes, no, or don't know? I can see a lot many yes. बट जो हो गया है, बीता हुआ कल हम बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाला कल हमारे हाथ पर है. तो डेफिनेटली लेट अस मूव अहेड इन लाइफ एंड थिंक what can we do better. We come to the most important part, that is your career. Friends, tell me, what is the best way to decide your career? Who should decide your career? Please tell me. Who should decide your career? I'm looking at the answers. Chat box मेरे बाजू में है. Teacher and parents. Okay. Mahima Pandey says teacher and parents. Shri Lakshmi says ourselves. Great. सबका अपना अपना सोच होता है. I would like each one to say जो दिमाग में आता है. आज कुछ सही नहीं, कुछ गलत नहीं, जो है अपना दिल का बात है. करियर कौन डिसाइड करता है? कोमल says ourselves. We ourselves with parents and teachers guidance. Very good, Nandana. Amruta also says ourselves. Great, great.
everyone participate, those who are a part of 10th standard, career कैसे decide होता है, guidance of teachers and parents, definitely. There are 2-3 very wrong notions available with careers. मैंने इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कोई अलग चीज नहीं, बट अपने बॉलीवुड का मदद लिया है. मैं आपको 2 पिक्चर का एक सीन दिखाना चाहता हूँ, 2 अलग अलग स्लाइड्स पर, देखकर हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे. पहला स्लाइड, please ensure that you are able to listen to this. This is from the famous movie of Three Idiots. Do you agree with this career option? Yes, no, don't know. Vishu sir, your audio was off. We couldn't hear what exactly was said by the TV the actors. अच्छा, 1 second. पैदा होने के लिए भी 300 मिलियन स्पर्म से रेस लगानी पड़ी थी. 1978 मेरा जन्म 5:15 पे हुआ और 5:16 पर अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा. फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर. And my fate was sealed. So this is one way of deciding the career. Was it audible this time, madam? Yes, sir. या थैंक यू. तो ये एक होता है कि पेरेंट्स बहुत पहले, तुम पैदा होने से पहले या तुम पैदा होते ही डिसाइड कर लेते कि तुम जिंदगी में क्या बनने वाले हो. दिस इज वन वे ऑफ करियर. सेकेंड इज अगेन वन मोर मूवी, लक्ष्य. लेट अस सी दैट. आप बताओ, मैंने अभी तक पेरेंट्स को बताया नहीं है, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया. क्या? आर्मी. आर्मी? अब बड़े टेंशन में आ गया हूँ. वो याद है लास्ट में हमने आईएमए में जो अप्लाई किया था? हाँ, तो यार मुझे लेटर आ गया आज एग्जाम में बैठने के लिए. तुझे नहीं आया? नहीं. दे दूंगा. क्यों? मुझे नहीं जाना है. नहीं जाना? क्या बात कर रहा है यार? तेरी वजह से तो मैंने अप्लाई किया था. So our second best source of information, our best friends. क्या करियर यहाँ डिसाइड होनी चाहिए क्या? Yes, no, don't know. Students. So everybody agrees that these 2 way of career decision is actually very bad. I'm not saying that parents should not decide career. Parents should decide the aim, the goal, along with student. उनको बैठना चाहिए. They should ask their interest, area of interest कहाँ है, and then they should definitely decide the career. जो 3 idiots अपन ने जो देखा, that was not very ideal. Second, जो students prefer करते हैं, दोस्त लोगों के साथ बात करना है. I will tell you one practical incident which I saw. Of course, the year is long back, 1992. मेरा 10वीं पास हुआ था. मेरे साथ मेरा एक और दोस्त 10th पास हुआ था. हमारे परसेंटेज में थोड़े फर्क थे. I was clear मेरे को कॉमर्स करना है. I wanted to become CA. That was a different story. मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ. बट मेरा दोस्त अलग कैटेगरी का था. He said कुछ भी हो जाए मेरे को आरकेडी कॉलेज ही जाना है. उस जमाने की बात कर रहा हूँ. मेरे को साइंस मिला तो भी चलेगा, मेरे को कॉमर्स मिला तो भी चलेगा, मेरे को आर्ट्स मिला, बट मेरा कॉलेज फिक्स है आरकेडी कॉलेज. मेरे दोस्तों, such things actually don't help. Why I am saying so is because लाइफ में पहला गोल सेट करो, स्ट्रीम सेट करो, और फिर बाद में तुमको क्या कॉलेज मिलता है उसके हिसाब से डिसाइड करो. And the third and the most funniest way of deciding career is the percentage. And where do you find this? You find in all families. 90% मिला तो साइंस, 70 मिला तो कॉमर्स, 60 मिला तो आर्ट्स. Even though you may say no, this is not a correct way, but this is a fact. During this course of career counseling, this is my 9th counseling lecture, my dear friends.
इस दौरान कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे पेरेंट्स से मेरी बातचीत हुई. A student who had already decided his goal even before the results were declared, उसको मिला 94% एसएससी में. अब परसेंटेज मिलने तक कोई कुछ बोलने को नहीं आया, लेकिन जैसे ही 94 मिला, रिश्तेदार लोगों ने फोन करना चालू कर दिया, अहो 94 भेटले, कॉमर्स कसं करणार, याला सायन्स मध्ये टाका. सो रॉंग. 94 मिळाला म्हणून कॉमर्स नाही करायचं. दिस इज अ व्हेरी रॉंग टेंडेंसी ऑफ डिसाइडिंग द करियर. इररेस्पेक्टिव ऑफ द परसेंटेज, अगर बच्चे ने स्टार्टिंग से रिसर्च करके रखा है तो उसको कॉमर्स ही करना चाहिए. अभी मैं बताता हूँ, लास्ट 3 सेशंस अर्लियर आई हैड वन वेरी ब्यूटीफुल स्टूडेंट फ्रॉम Airoli. He joined just for this career counseling session, Mr. Shardul, and he had scored 95%, but his vision was clear. लॉकडाउन पीरियड में ही joined a separate coaching for journalism. मतलब उसको क्या करना है लाइफ में सॉर्टेड है. परसेंटेज एक नंबर है मेरे दोस्तों. एसएससी में आपको एक नंबर जो मिला, इट इज लाइक ए जूनियर केजी. 95 मिला तो हवे में मत जाओ, अगर 49 मिला तो भी बहुत मायूस मत होना. वो जिंदगी का जूनियर केजी है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. अपने बीच में यहाँ पर कई सारे लोग बैठे हैं, दोज हु आर फ्रॉम various Rotary clubs, and if you talk one to one, they will definitely tell this SSC percentage, of course it's a booster, but it is not life. यहाँ से आगे जिंदगी बढ़ सकती है. तो करियर ये तीनों तरीके से नहीं डिसाइड करनी चाहिए. तो सवाल उठेगा, सर फिर आप बताओ कैसे करना चाहिए डिसाइड हमारा करियर. So there are 2 very simple things that career can be decided by. One is consulting a career consultant. There is a specialized category of people who specialize in deciding your careers, but they do various sittings. मतलब right from 9th standard or at the beginning of 10th, they talk one to one. They try to analyze your interest. There are various DMIT tests. There are various aptitude tests available which they do and tell you this is your area of interest. आप इसमें करो तो excel होने का chance ज़्यादा है. Or definitely somebody like a person who is experienced in that field. जैसे आज मैं आप लोग को काउंसलिंग करने बैठा हूँ. I am not a professional career consultant, but yeah, this commerce, I have been here for 25 years. I know majority of the courses, so definitely I can guide you the best as what commerce can give. Thinking that you all have decided upon your career by this time because result लग चुका है. पार्ट 1 का फॉर्म भर दिया है हमने, पार्ट 2 का फॉर्म भर दिया है. If we talk about commerce as a career, फिर सवाल मेरे को लगता है हर बच्चे के दिल में 4 बड़े सवाल आते हैं. 4 सवाल कौन से? सबसे पहला सवाल आता है, क्या है कॉमर्स? What is commerce all about? Everybody talks commerce, but nobody defines commerce or tells in very simple what is commerce. क्यों करना चाहिए मैं? Why should I do commerce? Somebody give me a very good reason why. Third one is कौन? Am I eligible? फायदा है तो should I? कौन करे कॉमर्स? और अगर एक सब का रास्ता आ गया तो लास्ट ये बताओ what is the procedure to complete the formalities? कैसे? These are the 4 common things which are in the minds of each and every student who wants to take up something in this field. So my dear friends, let us start with the first basic question. What is commerce? Commerce क्या है? मैं बच्चे लोगों से ये पूछना चाहूंगा जो आज का सेशन अटेंड कर रहे, क्या आपने अपने रोजाना जिंदगी में कॉमर्स को कहीं देखा है क्या? Have you seen commerce somewhere in your life? If yes, please type where and how. So just not yes, कहाँ और कैसे वो भी मुझे बताना. In a shop, in a hotel, superb. Yes, Mahima, very good, Komal. और कहाँ देखा है कॉमर्स का अलग अलग रूप? In a bank, very good, Sri Lakshmi. Yes, market, everywhere. So my dear friends,
कॉमर्स इज एवरीवेयर इन अवर डेली लाइफ। जब हम लोग सुबह उठकर दुकान में जाते हैं, दूध अंडा लेके आते हैं, तो हम कॉमर्स ही कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज ट्रेड। ट्रेड क्या है? इट इज नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। सामान खरीदना, सामान बेचना और सर्विसेज देना, ये है बिजनेस, ये है हमारा कॉमर्स। लेकिन ये एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर कॉल्ड एज एड्स टू ट्रेड। एड्स मींस हेल्प। सो ट्रेड होता है सामान खरीदना बेचना, जहां पर भी आप पैसा देते हो और आपको कोई चीज मिलता है, फिर वो ब्रेड, अंडा, दूध हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, वॉच हो सकता है, चश्मा हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, पेन हो सकता है, पेपर हो सकता है, यू नेम इट, यू हैव इट। कोई भी दुकान, मेडिकल स्टोर हो या कुछ भी हो, जहां पर हमको पैसा देकर कोई सामान मिलता है, वो है गुड्स। और जहां पर हम लोग पैसा देकर सर्विस लेते हैं, जैसे हम बैंक में गए तो वी यूज बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस में गए तो इंश्योरेंस का सर्विस, कहीं ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं, रिक्शा में जाते हैं, वी यूज सर्विसेज। हम लोग वो रिक्शा खरीदते नहीं। When you attend a classes, when you attend college, when you attend school, जो टीचर्स आपको नॉलेज देते हैं उसके बदले में आप फी पे करते हो, दैट इज सर्विस। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर यूजेस सर्विसेज। So my dear friends, there are so many options जहां पैसा देकर अपने को उनका बेनिफिट मिलता है, that is a service industry. It involves commerce. एड्स टू ट्रेड यानी अगर किसी को दुकान चालू करना है तो डेफिनेटली दुकान चालू करने के लिए देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बिजनेस चालू किया, खुद का पैसा डाला, कम पड़ा तो अपने को जाना पड़ता है बैंक के पास। तो द एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री, वॉट एवर सर्विसेज दे प्रोवाइड, इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। फ्रेंड्स, सामान हम लोग बना के होने के बाद, मैन्युफैक्चर होने के बाद, उसको एक जगह पे जाके हम लोग जगह पे रखते हैं, विच इज कॉल्ड एज ए गोडाउन इन वेरी कॉमन लैंग्वेज। उसको हमारे कॉमर्स की दुनिया में बोलते हैं वेयर हाउसिंग। सो एवरीथिंग विच इज इन्वॉल्व विथ लॉजिस्टिक्स, वन ऑफ द अपकमिंग एरिया और मे बी विच इज बूमिंग ऑलरेडी। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से होलसेल में सामान खरीद के अपने यहाँ पर डंप करके रखते हैं एंड देन दे डिस्ट्रीब्यूट एरिया वाइज। वेयरहाउसिंग is an important component of commerce. As I said in between, insurance is something which is definitely an upcoming industry, and every time wherever you feel that you are going to have losses, you can get yourself insured. You have a general insurance, you have a life insurance. कहीं पर भी आप अपने आप को इंश्योर करा सकते हो। This definitely is one of the closest services which I always look forward to, because I have almost completed my PhD in this particular topic. So my dear friends, insurance is a sector which can provide you what is called as life. आपको ना सिर्फ आपको जीवन बीमा देता है, आपके लाइफ में, करियर में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज समथिंग वी कैनॉट इग्नोर। नासिक में जो वेजिटेबल्स और जो हम लोगों को मिलता है, नासिक में भले ही ग्रो होता रहेगा, मुंबई में हमको आज खाने को मिलता है, द रीजन इज ट्रांसपोर्टेशन। सो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी तरीके से सामान जब एक जगह से दूसरे जगह पे लेके आया जाता है, कॉमर्स इज इन्वॉल्व्ड माय डियर फ्रेंड्स। Today, if I am able to reach out to you people at Dombivli, the reason for that is internet, laptop, mobile, you name it, again you have it. These are the various source of communication. Tomorrow, even yesterday, communication was the life of business, and even today, communication is the life of business. सब कुछ लॉकडाउन है लेकिन सब कुछ चल रहा है, and the prime reason is communication. People are able to communicate to each other. So each and every component of communication is related again to commerce. And the most important part why you and me are here are because of a common thread which we call as advertising. मेरे पास कोई चीज है, वो आप तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान रखते हुए we have to advertise properly. Social media has become a very good platform for advertising. Digital marketing is picking up like anything. So there are so many scope. Why I explained you commerce by this beautiful definition is because
फॉर एवरी एस्पिरेंट ऑफ कॉमर्स लेट मी टेल यू कि अगर आपको बिजनेस करना है, सामान खरीदना बेचना है, या आपको नॉलेज आपका शेयर करना है, या बैंक, वेयर हाउस, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग, कोई भी एरिया में जाना है, माय डियर फ्रेंड्स, कॉमर्स offers you an opportunity of a career in each and every industry. इतना सारा स्कोप है, उसमें से आपको डिसाइड करना है कि मेरे लिए बेस्ट क्या होगा. So commerce is a multi-fold aspect and it is having immense scope. मैं जैसे थोड़ी देर पहले बोला, कहाँ है कॉमर्स, बोला तो सब जगह पे कॉमर्स है. Everything is associated to commerce. So dear friends, commerce has unlimited scope to absorb you in its wings. अब दूसरा सवाल आता है कि मेरे लिए क्या. अच्छा, आपने इतना सब तो फील्ड बता दिया, अब मेरे को क्या है. लाइफ में हमेशा हम लोग तीन चीज के बारे में सोचते ज्यादा है. What are the three things that we always want? One thing तो everybody knows. ऐसा कौन सा चीज है जिसके पीछे सब लोग भागते हैं? What is that one motivating factor? Yes, definitely. ये मेरे को बोलने का जरूरत नहीं है, हर एक को मालूम है. Everybody can answer this blindfoldedly also. Everyone wants money. One thing which is always slipping out of our hands. One thing which is always slipping. मार्च 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने आके हमको बोला लॉकडाउन. पहले 5 दिन 10 दिन तो बहुत मजा आया, छुट्टी, वाह आराम. लेकिन then the realization came, what next? So the most important thing which is slipping out of our hands each moment, each second is time. Whether you are wasting it or you are investing it, that is what the future will give you back. So the second important component is time. And the last most important thing which I feel every person looks forward for is success. लाइफ में चाहिए पैसा आने के बाद, पैसा एक लेवल पे आने के बाद फिर वो चाहता है कि मेरा नाम ले लो, सब लोगों में मेरा नाम जाए, तो he works for fame. And I tell you my dear friends, commerce works everywhere. How? I will explain in very simple words. When I talk about money, I tell you commerce is the most economical course as far as education is concerned. Now, I'm not trying to demean any other stream, but anyone who opts science as an option, the fee paid by that student would be at least 4 times more than what a commerce student pays. तो definitely commerce बहुत इकोनॉमिकल है. यानी उनका मैं बोलता हूँ 11-12वीं का फीस में अपना ग्रेजुएशन होके फिर भी थोड़ा पैसा बचेगा, इतना हमारे पास इकोनॉमी मिलता है. और कॉमर्स का बच्चा ऑलरेडी कैलकुलेटिव होता है, बचपन से कैलकुलेटिव होता है. आई विल टेल यू, आई विल शो यू हाउ इट इज. सो इट इज मोस्ट इकोनॉमिकल. आप हर जगह पे कंपैरिजन करोगे, यू विल फाइंड आउट यस कॉमर्स इज वेरी वेरी इकोनॉमिकल. स्वस्तात मस्त असलेला कोर्स कॉमर्स आहे. एंड नेचुरली इट गिव्स द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. देन अगर हम 1 लाख रुपया डाल के 10,000 रुपया कमाते हैं या 10,000 रुपया डाल के 10,000 कमाते हैं, तो विच इज अ बेटर ऑप्शन, फर्स्ट वन और सेकेंड वन? 1 लाख डाल के 10,000 कमाना अच्छा है कि 10,000 डाल के 10,000 कमाना ज्यादा अच्छा है? फर्स्ट ऑप्शन कि सेकेंड ऑप्शन? कोमल से सेकेंड, महिमा से फर्स्ट. 1 लाख डाल के 10,000 कमाना अच्छा है महिमा? आपको 10,000 डाल के 10,000 मिल रहा है, तो विच इज बेटर? ऑफ कोर्स इट इज सेकेंड, बिकॉज आप कम पैसा डाल के जो है ज्यादा कमा रहे हो, तो सेकेंड इज ऑलवेज बेटर. तो कॉमर्स में क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही कम है, मैंने पहले बता दिया, तो नेचुरली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी डेफिनेटली ज्यादा है. सो विदाउट ए डाउट आई से दैट व्हेन इट कम्स टू मनी, एंड कॉमर्स के बच्चे ना बचपन से मनी माइंडेड होते हैं. इसीलिए आप ऑब्जर्व करना, मार्केट में स्टडी करना, जहां कहीं भी हम लोग रहते हैं, कल्याण बोलो, डोंबिवली बोलो, कहीं पर भी, द नंबर ऑफ कॉमर्स क्लासेस आर मोर देन कंपेयर टू ए साइंस क्लास. रीजंस आर मेनी. वन ऑफ द रीजन इज फीस. तो कमर्शियली जितना दुकान चलता है, एक मार्केट में 50 तरीके के दुकान रहते हैं, सब लोग कॉमर्स ही करते हैं मेरे दोस्तों. तो पैसा और कॉमर्स का बहुत नजदीक का संबंध है.
टाइम के बारे में बात करेंगे। वापस मैंने बताया बच्चे लोग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग दे आर मनी माइंडेड, दे फॉलो द कंसेप्ट ऑफ अर्न एंड लर्न। जितने बच्चे अर्न एंड लर्न के रहेंगे, आप एक सर्वे निकालोगे वापस 90% कॉमर्स में ही दिखेंगे आपको, क्योंकि उनका दिमाग वहीं पर वही एरिया में ज्यादा फोकस रहता है। अगर आप में वो ऑलरेडी चल रहा है तो मेरे दोस्तों कॉमर्स इज अ परफेक्ट स्कोप फॉर यू। Many of the commerce students take best utilization of time by doing something called as dual degree. मैंने आपको थोड़ी देर एग्जांपल में आई स्पोक अबाउट शार्दुल कि लॉकडाउन में भी उसने जर्नलिज्म का कोर्स किया। लॉकडाउन में कई सारे लोगों ने कई सारे कोर्सेज किए। आप ऑब्जर्व करना, ऐसा नहीं कि बाकी लोग नहीं करते, बट वैल्यूइंग टाइम एंड गेटिंग आउट मोस्ट आउट ऑफ इट, दैट इज व्हाट कॉमर्स टीचर्स। कॉमर्स हमेशा फायदा नुकसान कैलकुलेटिव चलते रहता है। साइंस वाला एक बार इतना ज्यादा नहीं सोचेगा जितना कॉमर्स वाला सोचेगा। सो कॉमर्स टीचर्स यू, इट कम्स आउट नेचुरली विद इन एनी पर्सन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फेम, you look about for the best top 10 world's richest person and you will find everyone are CEOs of some of the other multinational companies, big tycoons. कहाँ से आता है नॉलेज? अगर आप सोचोगे तो डेफिनेटली इट इज कॉमर्स। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ कॉमर्स इट गिव्स यू समथिंग कॉल्ड एज सेल्फ हेल्प। इट इज सेड इन इंग्लिश, गॉड हेल्प्स देम दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो अगर आपको सोसाइटी में कुछ परिवर्तन लाना है तो आपको सबसे पहले खुद को खड़ा करना है, और खुद को खड़ा करना है मतलब आपको जो है खुद का बिजनेस सेटअप करने के लिए करना है। खुद का बिजनेस सेटअप करने के लिए कौन सा आइडियल है? तो दैट इज डेफिनेटली कॉमर्स। So if you are in search of money, if you want to save your time, if you want success in your life, the field that you must always look forward to is commerce. I hope this 2 slides gives a very clear picture कि कॉमर्स क्या है और कॉमर्स क्यों करना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं सर ये सब करने के बाद what can we do further? So I just present to you a career chart. Now that you have passed your SSC, you will be moving on towards HSC. That is आपका 12th होगा। तब तक यहाँ पर 11वीं 12वीं में कुछ ज्यादा करना नहीं है। In fact, you take any field, whether you take science, commerce or arts, अगला 2 साल actually you don't do anything great. कॉमर्स में भी वही है, बट 12th के बाद life starts. How? The first thing that you can do is a degree. What is a degree? It's a graduation. इसके बारे में मैंने एक अलग स्लाइड पूरा रखा है कि कितने प्रकार से हम ग्रेजुएशन कर सकते हैं। प्लस यू कैन डू, मैंने ड्यूअल डिग्री के बारे में बोला था, तो यू कैन डेफिनेटली गो इन फॉर डिप्लोमा। डिप्लोमा किसमें? तो देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज जस्ट टू ऐड टू द डिग्री वैल्यू। You have diploma in taxation laws, you have diploma in communication skills, you have diploma in public speaking, you have diploma in whatever you want. होटल मैनेजमेंट में भी डिप्लोमा अवेलेबल है मेरे दोस्तों। तो डिग्री प्लस डिप्लोमा गिव्स यू a dual benefit. But more than that, the best dual option available is doing a professional course. What is a professional course? India में there are 3 big institutes which have been recognized by our parliament. The Institute of Chartered Accountants of India, the Institute of Company Secretaries of India, and the Institute of Cost and Works Management. My dear friends, these degrees, these are called as professional degrees. And the qualification that you get are CA, CS, and ICWA. Without a second thought, I would say that जैसे एक सिंपल कहावत है, 7वीं 8वीं तक बच्चों को पूछो आपको जिंदगी में क्या बनना है, तो उनको 2 ही जवाब टीचर्स नोइंगली अननोइंगली सिखाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर। कोई और तीसरा जवाब नहीं आता है हमारे पास। लेकिन कॉमर्स में आने के बाद ना डॉक्टर बन सकते ना इंजीनियर, तो फिर हम लोग कॉमर्स में आने के बाद दैट टॉप लेवल डिग्री इज CA. I don't want to create confusion in any minds, but CA is the degree which you must look forward to. In the 2019 campus interview which was conducted, let me tell you one thing. 2019 में जो कैंपस इंटरव्यू हुआ था CA इंस्टीट्यूट के यहाँ पर, बॉम्बे चैप्टर की बात कर रहा हूँ, the students who got employment got a minimum offer of 9 lakh rupees per annum and the highest offer was 21 lakhs.
अगर हम उसको एवरेज आउट भी करते तो 14 लाख 15 लाख रुपया साल का ऑफर लेटर मेरे दोस्तों, यानी कुछ नहीं तो महीने का 1 लाख रुपया आपको आराम से मिल सकता है. दैट इज द वैल्यू अ सीए डिग्री होल्ड्स. देयर आर एज आई टेल मेनी अदर ऑप्शंस, लेकिन अगर अर्जुन की तरह इफ यू हैव टू लुक एट द आई ऑफ द बर्ड, so a student who comes to commerce must definitely think about CA as a career. Of course it's not easy. Of course it's not easy. There is a lot and lot of hard work involved. यहाँ पर हम लोगों को जान लगाना पड़ता है. रिजल्ट साल का जो आता है it's 2% to 4%, very less percentage of results. But वही तो चीज है, सप्लाई कम है इसीलिए डिमांड ज्यादा है. पूरे देश भर में 3 लाख से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, मतलब देश का 1% से लेस पॉपुलेशन इज इनटू दिस फील्ड. व्हाई नॉट डू दैट इफ यू हैव द कैपेबिलिटी, इफ यू हैव दैट पोटेंशियल इन यू. अगर आपका मैथ्स अच्छा है, अगर आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी अगले 2 साल में अच्छा हो जाता है तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए. At the same time, I would also like to tell, कोई बोलेगा सर मैथ्स खराब था इसीलिए तो कॉमर्स लेने का सोच रहे, हमको नहीं चाहिए मैथ्स. It's okay, fine. It's your choice. If you don't want maths, then you can choose a subject called as secretarial practice in 11th and 12th. And you can go via that channel to one very beautiful professional course which is at par with CA, and it is called as CS. I do not want to demean any course, किसी को भी कम किसी को ज्यादा नहीं बताना है, लेकिन the market demand says CA, CS, CMA. So my dear friends, if you are looking out for the best, look out for the best. क्यों थोड़ा कम करने का? तो इसीलिए नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन जिनका थियरी स्ट्रांग होता है, CS plus law gives you a very deadly combination. CS plus law gives you a very deadly combination. Likewise, in an industry which is more involved into manufacturing goods, जो goods manufacture करता है उनके लिए एक चीज हमेशा सताते रहता है, वो है कॉस्ट. हर आदमी एक चीज चाहता है एज ए प्रोप्राइटर, एज ए ओनर, कि कॉस्ट कटिंग कैसे हो. ये कॉस्ट कटिंग करने के लिए जो स्पेशल स्टडीज होता है, दैट इज बीइंग कंडक्टेड इन दिस कोर्स कॉल्ड एज CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. तो माय डियर फ्रेंड्स, CA हो, CS हो, CMA हो, नो डाउट they are the best. And as I told, once you are entering into this field of commerce, आपका नजर, आपका गोल सेटिंग, थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे, गोल सेटिंग अगर वहां हुआ तो डेफिनेटली यू आर अ विनर इन दिस फील्ड ऑफ कॉमर्स. Just few moments back, as I told you that there are various degree college options available. Let us have a look at various graduation options available. Graduation is basically completing your bachelor's degree. तो one basic जो जुना जमाने में मेरे साथ जितने लोग यहाँ पर जमा है, they will agree, हम लोगों को बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं था. हम लोग सब सीधा साधा 11वीं कॉमर्स, 12वीं कॉमर्स, फर्स्ट ईयर बीकॉम, सेकेंड ईयर बीकॉम, थर्ड ईयर बीकॉम, एकदम स्ट्रेट पटरी में चलते थे. बट आज के इस नए युग में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए. तो वन फर्स्ट बेसिक ऑप्शन इज बीकॉम. सेकेंड, जिन लोगों को एक और बहुत बढ़िया कोर्स है जो मार्केट में हमेशा चलता है और बहुत सारे लोगों ने नाम सुना रहता है, दैट इज MBA, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. इन मुंबई इट इज कॉल्ड एज MMS, दैट इज मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. इफ एनीबडी हैज एन एम to reach to that place, then the bachelor's degree that they would be doing is called as BMS, that is Bachelor of Management Studies. My dear friends, again taking up the case of Shardul, as I told you, he is interested in journalism, so both BCom and BMS does not help. He has to join this course called as BMM, which is Bachelor of Mass Media. So anybody interested in mass media, journalism, whether it is TV, radio, print media, जहां पर भी जाना है तो उन्होंने BMM करके उस रास्ते से आगे जा सकते हैं. These are the start points, my dear friends. ये बात सब लोगों ने समझ लेना, ये खत्म नहीं होता है. बहुत सारे लोगों को लगता है ग्रेजुएशन हो गया तो जिंदगी खत्म, पढ़ाई खत्म. नहीं, वहां से आगे मास्टर्स और आगे बहुत बहुत बड़ा रास्ता चालू होता है.
तो आपके जिंदगी में ना करियर काउंसलिंग आप मेरे साथ सुनोगे तो 3 बार मैं करियर काउंसलिंग साल में हर साल करता हूँ, एक 10वीं के बाद, एक 12वीं के बाद, एक ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि हर टाइम नया नया क्षेत्र। आज मैं तुमको 5 साल के बाद क्या होगा बताऊंगा, तो बाय द टाइम यू कम देयर इट विल बी ऑल स्टेल, खत्म हो जाएगा। वैसे भी आप लोगों ने सुना होगा देयर इज ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी कमिंग अप, जहां पर ये 10वीं 12वीं भी उड़ने वाला है, बोर्ड एग्जामिनेशन। इट इज ट्रू, बट इम्प्लीमेंटेशन विल बी नॉट इमीडिएट। ऐसा नहीं कि आज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, बहुत सारे टीवी चॅनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज दिखाया की बोर्ड एग्जाम्स आर कॅन्सल्ड, बच्चे लोग और पेरेंट्स परेशान, आता तर मी 12वीला गेलो, आता कॅन्सल झालं तर? असं काय होणार नाही, आत्ताच्या आत्ता लगेच काहीच होत नाही. Entire infrastructure, the entire system of the country is going to change, so it will be gradual. हाँ, जैसा अपन डीमोनेटाइजेशन की बात करें तो प्रधानमंत्री ने उस दिन रात को आके बोला कल से 500 रुपया और 1000 रुपया बंद, तो वो बंद, दैट इज डिफरेंट। बट एजुकेशन सिस्टम चेंज करना है तो वो एक दिन का बात नहीं है मेरे दोस्तों, इट विल बी ए ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन। और इस कोरोना के टाइम पर इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज स्टिल वेरी डिफिकल्ट, टाइम विल कम। मतलब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, एटलीस्ट तुम लोग आज जो 10वीं में एग्जाम देके बाहर आए हो, 12वीं तक तो मेरे ख्याल से सिस्टम चेंज नहीं होगा। आई एम पुटिंग आउट माई नेक एंड टेलिंग यू दिस स्टेटमेंट, ठीक है। ए साल में तो कुछ होने से रहा, शायद अगले साल भी तुमको ज्यादा, मतलब तुम 12वीं में होने के बाद व्हेन यू एंटर दिस ग्रेजुएशन सिस्टम, मे बी मैं तुमको ये जो चार्ट दिखा रहा हूँ दैट मे चेंज। कमिंग बैक टू आवर ग्रेजुएशन डिग्रीज, जब गवर्नमेंट या मुंबई यूनिवर्सिटी को ये पता चला कि बीकॉम बीएमएस बीएमएम में बहुत गर्दी हो रहा है, तो उन्होंने बीकॉम में कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्सेज लाए, जैसे बीकॉम रेगुलर, अकाउंटिंग, फिनांस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऐसे 17 है, मैंने 4 ही रखे हैं। और आज मैं इसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि अब भी जस्ट मैंने बताया कि बाय द टाइम यू कम हियर दिस ऑल मे बी चेंज्ड। फ्रेंड्स, listening to so much of things, you might just be wondering कि मैं क्या बनूंगा अगर मैं कॉमर्स लिया तो this is the crux of my session, what are the different careers in commerce। मैं कॉमर्स लेके क्या क्या बन सकता हूँ। मैंने शायद 4-5 नाम तो बात करते करते बोल दिए। You can become a chartered accountant, you can become a company secretary, you can become cost and management accountant, you can do your MBA, you can do a lawyer. As I told you, CS plus law is a superb combination, a successful combination। The most important thing of commerce, मैंने ड्यूअल डिग्री के बात किया था दोस्तों। अगर आपको यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम्स क्लियर करने की इच्छा है, विच यू अपीयर जनरली आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तो वो व्हाइल यू आर डूइंग ग्रेजुएशन, एफवाई बीकॉम एसवाई बीकॉम में आप लोग को कॉमर्स इतना टाइम देता है पढ़ाई करने को, बिकॉज यूपीएससी एमपीएससी रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 years ऑफ डेडिकेटेड स्टडी। तो एक जगह पे आप यूपीएससी का पढ़ाई करो, दूसरी जगह पे बीकॉम का पढ़ाई करो रेगुलर, आप दोनों को कंबाइन करके एज सून एज यू कंप्लीट योर graduation, you start writing all the competitive exams, and God willing, you may be one of the next IAS, IPS officers that is educated as well as understanding the ground level problems of the people. You can become a chef by doing hotel management, and definitely you can become a teacher after doing NET-SET। मतलब रास्ता इसका ऐसा है कि बीकॉम एमकॉम नेट-सेट एंड देन यू कैन डू पीएचडी। ठीक है, पीएचडी करोगे तो यू विल हैव दैट डॉक्टरेट वाला क्या बोलते हैं इनिशियल्स इन योर नेम, व्हिच इज अगेन अ मैटर ऑफ प्राइड। कॉमर्स गिव्स यू द एंटायर स्टडी ऑफ टैक्स सिस्टम एग्जिस्टिंग इन इंडिया, इनकम टैक्स बोलो या फिर जीएसटी। ऑफ कोर्स दिस चेंजेस टाइम टू टाइम। कल के ही दिन में शायद आपको याद रहेगा तो there was tax reforms which were announced by our honorable prime minister again। बहुत सारा चीज चेंज होने वाला है। जीएसटी ने वैसे पूरे इनडायरेक्ट टैक्सेस की दुनिया को बदल दिया था। पहले हमारे यहाँ पर 16-17 अलग अलग टैक्सेस होते थे, अब एक ही है, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। तो उसमें आप भले ही सीए सीएस जो भी है प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन नॉलेज लिया तो आप आपका खुद का कंसल्टेंसी चालू कर सकते हो। And as I always say, commerce लिया तो you can definitely become a very very superb and wonderful businessman। I have again taken a very small clip from the business industry which can help you understand
कि कैसे बचपन से कॉमर्स खून में रहता है, ये मेरा अगला वीडियो देखकर आपको जरूर पसंद आएगा. एंड everyone present here, I would like to see your comments in the chat box as to what you make out of the next video here. So ये 6 साल का था और इसने गुब्बारे खरीदे 15 रुपए. फिर ये घर गए और इन्होंने डिसाइड किया कि यार ये 15 रुपए के जो गुब्बारे हैं ये थोड़े से महंगे लगे इनको. इनका दिमाग जो है, जैसे मैं बता रहा था कि धीरू भाई अंबानी जी ऐसे. तो तुमने क्या किया उसके बाद? बच्चे क्या करते हैं, गुब्बारे लेते हैं, उड़ाते हैं, खुश होते हैं, सो नाइस सो नाइस. तुमने क्या किया उसके बाद? मैंने जाकर गुब्बारे की पैकेट खरीदी और हवा तो फ्री होता है, हवा भर दी और बेचने चला गया. पैकेट इसने 2 रुपए की खरीदी. Look at the money and the Reliance mind. हवा तो फ्री है, इसमें डालो. 2 रुपए का गुब्बारा 15 रुपए के So आपका जो कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, ये आपसे ही सीखा है. So in very simple words, कॉमर्स बचपन से 6 साल के थे अनंत अंबानी, तब से उनको कॉमर्स समझ में आता है. As I said, those who are present in this webinar, what is your initial feedback? You can just type in the chat box. क्या समझ में आता है आपको? Simplest thing that I can derive is कॉमर्स या बिजनेस सिखाने का जरूरत नहीं होता. उसी प्रकार ऐसे लोग जिन लोगों को बिजनेस ऑटोमेटिकली बाय ब्लड आता है, अगर उनको नॉलेज भी रहे साथ में, यस, utmost utilization, thank you Deepali, that automatically creates the थॉट प्रोसेस इन सच ए वे कि अपन हमेशा फायदा नुकसान हर एक्टिविटी में सोच सकते हैं. और अगर आप ऐसा कभी कुछ करते हो तो आई अगेन टेल यू, कॉमर्स इज द फील्ड. एज यू मस्ट ऑल बी नोइंग, जुलाई में जो RIL का अभी जस्ट कंक्लूडेड AGM हुआ, अनंत अंबानी विथ हिज सिस्टर took a lead in a project of AR टेक्नोलॉजीज. एक साधारण चश्मा में उन्होंने ऑडियो वीडियो सब फिट कर दिया है. अगर अगले बार अपने को ये वेबिनार लेना है तो लैपटॉप और मोबाइल फोन का कुछ जरूरत नहीं है, चश्मा पहनेंगे हम लोग, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे. वर्चुअल मीटिंग्स आर पॉसिबल. सी हाउ अ कॉमर्स पर्सन, ही इज डेफिनेटली डन हिज MBA, गॉट द बिजनेस नॉलेज एंड टेक्निकल टीम के साथ में ही क्रिएटेड वंडर्स. सो आई जस्ट वांटेड टू से हाउ अ बिजनेस माइंड इज ऑल अबाउट. 6 साल की उम्र से ही वाज दैट वे. Next, I would be sharing something again related to goal settings. This was a result which was taken from the Google, of course. Harvard University का सर्वे है जहां पर students with no goals, half-hearted goals and focused goals were interviewed. मतलब एक इंटरव्यू लिया गया था, just like 10वीं के रिजल्ट के पहले आपको क्या करना है लाइफ में. As you all know, maximum people say I don't know anything. मला काय माहिती नाही काय करायचं. No goals in life. Of course, abhi to you might be either in the second category or in the third category. But before the results are declared, majority of them were in the no goals category. 13%, only 13% were half-hearted, and further only 3% had focused. Why is this survey important? How is it related to goal setting? Is after 15 years, the surveyors again found out, सब लोगों को उन्होंने पकड़ के लाया और बोला भाई साहब अभी आप क्या कर रहे हो, and the results were really shocking. जो ये 84% वाले कैटेगरी में थे, suppose let us, I am putting up a number, 10,000 रुपया कमा रहे थे पर मंथ, तो ये 13% वाले लोग 20,000 कमा रहे थे. मतलब इनके डबल बेटर पोजीशन में थे. एंड जो फोकस्ड थे उस वक्त वो 2 लाख रुपया कमा रहे थे, इनके 10 टाइम्स. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका गोल फोकस्ड होगा तो इट इज इजियर टू अचीव दोज गोल्स. इफ युअर गोल्स आर स्कॅटर्ड, हे पण करायचंय मला, ते पण करायचंय, असं पण करायचंय, तसं पण करायचंय, देन द सक्सेस रेशियो इज व्हेरी लेस. अर्जुन, फोकस्ड गोल, द बेस्ट एग्जांपल इज अर्जुन. मैं शायद 2 बार 3 बार बोला रहेगा, बट गोल अगर फोकस्ड है तो अचीव करना ज्यादा इजी है.
इसीलिए आप भले ही अभी 11th स्टैंडर्ड में हो, यू कैन से एनीथिंग एंड एवरीथिंग. आई हैव शोड यू अ लिस्ट ऑफ सो मेनी थिंग्स टू डू, बट टिक ऑन वन थिंग की मला हे करायचं आहे एंड स्टिक इट इन फ्रंट ऑफ यू. हे एकदम कॉमन आहे. आपको शायद आपके माँ पिताजी भी धर्मे भी बोलते रहेंगे तुला किती पर्सेंट काढायचं आहे ते कागदावर लिही आणि तुझ्या स्टडी टेबल समोर लावून ठेव. इट हेल्प्स. एव्हरी टाइम यू सी दैट नंबर, it starts either irritating you or motivating you. तुम वो नंबर देखोगे तो एक तो तुमको उसमें चिढ़ होने लगा, रे यार आपण कमिट केलं, आपल्याला करावं लागणार, और चल मला हे करायचंय. either ways it puts you into action. So goals when focused gives you results. So if you have not yet made a goal yet, this is the right time. You are having lot of things on hand. इंटरनेट तुम्हारे पास अवेलेबल है, गूगल में जाओ, ढूंढो, तुमको चाहिए वो डेटा मिलता है. ट्राई टू मेक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द सेम. द ओनली थिंग इज हमको करने की इच्छा होनी चाहिए. वी आर कमिंग टू द क्लोज ऑफ प्रेजेंटेशन एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड कमिंग अप. दोज हु हैव decided to take commerce, just a short information that in your 11th and 12th you will be having 7 subjects, of which 5 are compulsory. Of course, those which are compulsory, I will not be saying much about it क्योंकि ये करना ही है. English, the first language, economics and bookkeeping, ये दो जो subject है ये commerce का जान है. These are the heart and soul of commerce. Organization of commerce starts about, मैंने जो commerce क्या है definition उठाया, ये इस subject से उठाया है. Organization of commerce कॉमर्स का बुनियाद देता है आपको. एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, इट इज कॉमन सब्जेक्ट फॉर ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आपको ये ईवीएस रहेगा. When I talk about optional subjects, friends, this is where I can help you. As I told you, the first major optional subject is secretarial practice and maths. मैंने पहले एक जगह पे इसका रेफरेंस दे दिया. अगर आपको सीए करने की इच्छा है, मैथ्स इज अ बेटर ऑप्शन. लेकिन अगर आपको सीएस करने की इच्छा है तो एसपी देना चाहिए. बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स लोगों को ये समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं, और मैथ्स जाना पहचाना रहता है. दिस इज वेरी कॉमन टू यू एंड मी. हमको जो जाना पहचाना रहता है हम लोग उसी को टिक मार्क करते. तो बहुत जन मैथ्स ले लेते, लेकिन ये मैथ्स आसान नहीं है दोस्तों. यहाँ पर मैथ्स डिफिकल्ट है. इसीलिए अगर आपको मैथ्स से प्यार होगा, मार्क्स अगर अच्छे मिलते हैं तो ही मैथमेटिक्स लो, वरना उस रास्ते पे मत जाओ. Better option is SP. SP is not bad and you can do whatever a person of maths can do. हाँ, certain examination like a BSc IT अगर आपको करना है, या कुछ और कोर्सेज होते हैं, किसी को MCA वगैरह करने का रहता है कॉमर्स करने के बाद, उनको 12वीं मैथ्स कंपलसरी होता है. So this is the only condition where you must take maths. Otherwise, if you are going to be in commerce, you can definitely go ahead with secretarial practice. And second language में you have Hindi, Marathi and information technology as your second language. Marathi medium students रहेंगे तो definitely Marathi लेना. English medium वाले रहेंगे तो they can choose for Hindi or IT as optional subject. Choice is yours. IT is again computers. And नहीं तो फिर हिंदी is what is chosen by majority of the students. This is what I had to definitely say from my side. This is Vishu sir. As Deepali said, Vishwanathan seems a very big name. Modern जमाने में बड़ा नाम दिखता है तो लोग मुझे विशु ही से बुलाते हैं. सीए मैं जनरली पुटअप करता हूँ. मेरे सारे जगह पर आप चेक करोगे तो you will see my ID as CA Vishu sir only. These are my mobile numbers. You can take a note of it. I am available on call as well as on WhatsApp. दोनों नंबर्स अवेलेबल है. फेसबुक में विश्वनाथन अय्यर एंड इंस्टाग्राम में सीए विशु सर के नाम से मेरे अकाउंट्स है. आई कीप ऑन पोस्टिंग मेनी थिंग्स विच आर रिलेटेड टू कॉमर्स एडमिशंस. जस्ट नाउ मेरा एक वीडियो मैंने पुटअप किया है जहां पर लैंग्वेज वर्नाकुलर मीडियम वाले स्टूडेंट्स लोगों को क्या करना चाहिए टू ओवरकम द फियर ऑफ इंग्लिश, उसके बारे में मैंने एक वीडियो पुटअप किया है. कल 15 अगस्त होने की वजह से हम लोगों ने एक अनसंग फ्रीडम फाइटर्स स्टूडेंट्स लोगों को ही मैंने एक्टिविटी दिया था कि ऐसे फ्रीडम फाइटर्स जिनका नाम हमको हिस्ट्री के बुक्स में ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलते हैं, ऐसे लोगों के बारे में ढूंढ के लाओ. एंड दे डेफिनेटली डिड अ ग्रेट जॉब. वी डिस्कस्ड
we heard about 50 or more unsung heroes of the Indian freedom struggle. So all this information apart from academics तो मैं सिखाता ही हूँ, but apart from that I definitely am more interested in overall development of the student, because in modern times jack of all is the one who rules the world. Thank you for being a wonderful audience and listening to my presentation. Thank you, Deepali, and thank you all the Rotary clubs for giving me this opportunity. Thank you, Vishu sir. That was absolutely what you call interesting, illustratively interesting, because it has the glimpses of Bollywood clips. Shah Rukh Khan Disla, and it gave the proper illustrative example of Ambani son. So thank you so much. We have with us a few Josh president whom I would just like to address, and if they would just give a minute or so about what they felt. We have Sanket Kulkarni from Rotary Club of Central. Sanket, if you are there, can you just unmute yourself in a minute? Oh, yes. हॅलो दीपालीजी बोला. Yeah, Sanket, please. खूप छान वाटलं आणि मी ते स्टेटसवरती टाकलेलं तुमचं पोस्टर आज आपलं जे पॅक आहे त्याचं, आणि माझ्या क्लबचे जे काही इंट्रॅक्टर आहेत त्यांचे मला फोन आले की आम्ही हे जॉईन करू का. म्हटलं तुम्ही अवश्य जॉईन करा आणि तुम्हाला याचा फायदा नक्कीच होईल, आणि ते आता आहेत याच्यामध्ये जॉईंट आहेत आणि खूप छान सांगितलं. आणि तुमचा मोबाईल नंबर वगैरे मी घेऊन ठेवलेला आहे. जी स्टुडंट्स 10वी नंतर जे पास आउट होऊन पुढे गेलेले आहेत आणि कदाचित ते माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करतील किंवा मी स्वतःहून त्यांना कॉन्टॅक्ट करीन, तर मी तुमचा रेफरन्स नक्की त्यांना देईल आणि आपला नंबर त्यांना मी नक्की देईन, तुमच्यापर्यंत नक्की त्यांना पोहोचवीन. आणि मला ही कल्पना आहे आणि हा विश्वास आहे की तुम्ही उत्तमोत्तम त्यांना मार्गदर्शन कराल नक्कीच, कारण की तुमचं बोलणं इतकं मोटिवेशन होतं ना, खरोखर खूप सुंदर, मला प्रचंड आवडलं. थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. मी रोटरी प्रेसिडेंट संकेत कुलकर्णी डोंबिवली सेंट्रल तर्फे तुमचे खरोखर आभार मानतो. थँक्यू सो मच. आणि दीपालीजी तुमचे खूप खूप धन्यवाद की तुम्ही हा खूप सुंदर प्रोजेक्ट ऑर्गनाइज केला आहे, त्याबद्दल तुमचेही मनपूर्वक आभार. Thank you, Sanket. Thank you so much for joining in and advising your social circle to get in touch with Vishu sir. We have with us Rotarian Josh President Lakshmi Sharma from Dombivli Regency. Lakshmi, this yeah, Lakshmi, please. Good evening, she is everyone. Yeah, hi Lakshmi. Good evening, Vishu sir. I mean, like when you were explaining, I could, as I'm a commerce student, I could completely relate your topics with myself. What happened to me, it was kind of flashback for me. And the best part is when you explained in the vernacular language. Okay, I mean, like, you know, people must have noted the points easily. So even if students are not here as of now we can go and guide them whatever you guided us, right? And the most important thing, which I thought when this session was going on, we would like to have your session for, Hindi and Marathi government aided schools, wherein students don't get this knowledge. I mean, they just get their education for namesake, but then they are really lost at the end of their 10th standard result. So Dipali ma'am, if you're organizing such things for the students on common platform, let us step ahead for the aided schools, and let's have some more good projects with sir. Yeah, yes, thanks Lakshmi. Thanks for the advice, and we will be keeping Vishu sir busy now onwards. Definitely, we are going to bother him, as I have also noted his number now. Sure. This is more than. Thank you so much. Yeah, thank you so much. I would be more than obliged to do that. Yeah. Thank you much. Then we have is Josh President Sharad Seth. Are you there? Yeah, hi Deepali. Yes, hi. Sharad, hi. If you can just give out your words of appreciation also. Sure. I think quick update. So I come from an MBA background, and I've also guided people in terms of their careers with respect to engineering and MBA. So I think I could relate to a lot of things that Vishu sir was saying. What was very interesting about the whole session was that it was very practical, and it had a lot of these anecdotal and tidbits and movie sequences, etc.
which made it less of a lecture and more of a, a fun session. Yeah. Which honestly, I've gone through a lot of these kind of sessions also, and counseling sessions, etc. But they become pretty boring in first 15 minutes. But you made sure that this remained interesting right till the very end. So I think great stuff, and I'm sure yes, Deepali, as Lakshmi also mentioned, we would like to probably extend these kind of sessions to a larger audience. Thank you. Yeah, thank you. Thanks, Sharad.